मदद हो जाए. I thought I should add that value. So welcome to this session today, and I'll first invite Sama ma'am to conclude what she said, and if there are questions on why and how and who to coach. Sama ma'am. I can have everybody. I can have Sham sir. So let's do a quick recap like we always do. Just give me 1 minute. I'm going to share my screen. Mhm. Okay, so we spoke about business coaching last week. I think it's a word that has been introduced in India. थोड़ा समय हो गया, अभी 5-6 साल हो गए. Many business coaches now, many entrepreneurs are feeling the need. They are reaching out as well. But फिर भी अभी भी काफी questions रहते हैं कि what is business coaching, what is business consulting, how will it help me? So we discussed that in last week's session. कोचिंग इज नॉट न्यू. लाइक आई सेड, कोचिंग लास्ट वीक में मैंने डिस्कस किया था कि कृष्ण अर्जुन का कोच था, उसका सारथी था. इन द वॉर, इन द बैटल, ही वॉज विद अर्जुन, ही वॉज कोचिंग अर्जुन. एक्चुअली अगर देखें तो गीता इज अ एंटायर कोचिंग कॉन्वर्सेशन. इट्स अ कोचिंग डिस्कोर्स where he is helping Arjun to clear his mind, to clear his vision, his objectives, his motivations. So वो बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है हमारी हिस्ट्री में, हमारी माइथोलॉजी में, on what coaching is and what it can deliver for leaders. बट जब हम अपने बारे में और अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि मुझे कोचिंग की ज़रूरत नहीं है. एंड ये भी मैंने शेयर किया था कि सबको कोचिंग की ज़रूरत है किसी ना किसी टाइम पे लाइफ में. वी ऑल सीक आंसर्स, वी ऑल सीक somebody to look at us from the outside, जो हमें एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का हिंदी में वर्ड, जो आपको एक निष्पक्ष, सो आई थिंक निष्पक्ष perhaps is the word, जो आपको एक निष्पक्ष पर्सपेक्टिव अपने बारे में दे सकता है. दैट इज समथिंग दैट अ कोच डिलीवर्स. कोचिंग और कंसल्टिंग में फ़र्क होता है थोड़ा सा. क्विकली आई टॉक अबाउट इट. बिजनेस कोचेज in very summarized forms, if I tell you, कोच जो होता है वो आपको मछली पकड़ना सिखाता है. जो कंसल्टेंट होता है वो आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है. आप उसको तभी बुलाते हैं जब आपके पास एक पर्टिकुलर एक्सपर्टीज ड्रिवन प्रॉब्लम होती है. उसका सोल्यूशन के लिए, डायग्नोस्टिक के लिए, पता करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करें, कंसल्टेंट्स यूज होते हैं. सो बेसिकली दे कैच द फिश फॉर यू. समटाइम्स इवन दैट इज नेसेसरी. बट जहाँ तक बिजनेस ग्रोथ का सवाल है, that is a coaching area. How do you grow your business? And I think in that the biggest aspect is how do you grow yourself as a leader. So जो कोच होता है वो आपके द्वारा आपके बिजनेस पे काम करता है. बिकॉज लाइक आई ऑलवेज से, योर बिजनेस कैन नेवर बी बेटर देन यू. And therefore the coach's primary raw material is you as a leader. They work with you to create systems. They work with you to understand the organization puzzle. How do you make people accountable? How do you drive high performance in your teams? These are all organizational productivity, excellence, efficiency topics that the coach is responsible for. So वो आपके थ्रू काम करता है, आपका काम नहीं करता है वो. They don't lead your company to growth. They make sure that you understand what it takes and you do what it takes. So I think that's a very interesting distinction I want to make here. क्योंकि इंडिया में काफी सारे मोटिवेशनल कोचेस हैं. These two words don't go together. Coaches don't stop at motivation. They make you do things. They make sure that they are with you while you're doing it. So they're watching you, they're observing you, they're giving you feedback, they're telling you how it is done elsewhere, what are some of the success tools that you can use. So they give you tools, they give you ammunition to make sure that you are successful, but they are there while you do it. So अगर कभी confusion हो तो just imagine Krishna and Arjun in the battlefield. It is in the battlefield that the coach is with you. वो एक बहुत बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है कोच और कंसल्टेंट के बीच में. एंड व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कोच? बिकॉज बहुत बार जब हम ईपॉस के असाइनमेंट्स लेते हैं, सो
ये कंफ्यूजन बहुत होता है कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम काम करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, वी विल नॉट लीड योर ऑर्गेनाइजेशन, वी विल मेक श्योर यू अंडरस्टैंड हाउ टू लीड योर ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, आई विल कम टू दैट, कि व्हाई वी थिंक मोर देन एवर बिफोर एमएसएमईज इन इंडिया नीड कोचिंग। आज का जमाना बदल गया है, ये बहुत एक क्लीशे डायलॉग है, बट आई थिंक इट इज मोर रेलेवेंट टुडे देन एवर बिफोर। इट इज नो लॉन्गर द सेम वर्ल्ड, it is no longer the same world that your father or your uncle opened their business in. जमाना बदल गया, बिजनेस वर्ल्ड बदल गया, कंपटीशन बदल गया, हाउ कस्टमर्स लुक एट सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज वो बदल गया, वो आपसे उम्मीद क्या करते हैं वो बदल गया। और मैं सिर्फ एंड कस्टमर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इवन बिजनेस कस्टमर की बात कर रही हूँ। So everything has changed. And what has changed it? I think the fact that you have competition has changed it. Today, nobody wants to get a die made in India क्योंकि उसने चख लिया है स्वाद चाइना की सर्विस का। चाइना को आज आप रात को मेल भेजो, आपको 2 घंटे में, दिन हो, रात हो, दोपहर हो, आपको मेल का जवाब मिलेगा। So this is the expectation. The expectation of your customer has gone up. The world is changing very fast. The quality expectations have gone up. I mean, the whole thing has changed. It's no longer the same business. हम बहुत ये कहानियां सुनते हैं कि मेरे पापा ने साइकिल पे बिजनेस शुरू किया था. I think it's fantastic. People who started businesses in those times were brave, were courageous. They did it, but what they did will not help us today. But most of us in family run businesses are doing exactly what your fathers or grandfathers were doing in business. But it's not relevant anymore. You have to do different things for getting even the same results in this world because the world has changed. So therefore, remember it's a different world. It's not the same world. आप साड़ी बना रहे हो, आप garments बना रहे हो, आप pipes बना रहे हो, आप accessories बना, आप जो भी कुछ बना रहे हो. The speed of change is so fast today. Technology is changing so fast today. You have to keep pace. So therefore, there is no room for complacency. There are no, you cannot let years go by to change things. अब तो समय ही नहीं रहा हो. So therefore, इतना change है, इतना fast change है, technology इतना change हो रहा है कि हमें जरूरत है to get and work with people who can guide us through this change. क्योंकि हमने सीखा नहीं है. So most entrepreneur leaders have not been to a business school, and I'm not saying being to a business school makes you make sure that you can run your business. No, but it gives you a perspective. It gives you an ecosystem. It is a starting point. But most of us have not even gone there. We have learned from our family members. We have learned from our friends. And I'm not sure if you have learned the right things. हमें नहीं मालूम है फॉर एग्जांपल कि रिव्यूज कैसे होते हैं, हमें नहीं मालूम है KRA KPIs कैसे सेट होते हैं, हमें ये नहीं मालूम है कि स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट की जाती है. हाउ डू क्रिएट स्ट्रैटेजी? एंड इन दिस वर्ल्ड ऑफ चेंजिंग बिजनेस, चेंजिंग कॉम्पिटिशन, स्ट्रैटेजी इज एट द हार्ट ऑफ योर बिजनेस. आपको अपने बिजनेस की रणनीति बनानी ही पड़ेगी. अगर उसकी विधि नहीं आती है तो कैसे सीखेंगे वो विधि? सिर्फ सुनने से नहीं सीख सकते हो. आई नो देयर आर लॉट ऑफ मोटिवेशनल गुरुज आउट देयर and lot of fantastic videos floating out there in terms of Facebook ने ऐसा किया और Amazon ने ऐसा किया. That's fantastic to start with, but how do you do it? So what is the know-how of the know what? So just knowing what will not help. You have to have somebody who helps you with the know-how. And I think today, if you are a business person who has a vision, who has a desire to solve a problem by running their business, coaching is perhaps something that all of us need. We all need that. अगर सिर्फ नौकरी क्रिएट करनी है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, we had nothing to do, हमने पढ़ाई नहीं करी थी इसलिए हमने बिजनेस ज्वाइन किया है, that's a different story. But if you want to grow, if you want to win in the business, you have to look at how will you learn how to do business, continuously improve and continuously go to the next level. I also wanted to share quickly a slide. I was thinking about it that हमारे जो EPOS के clients होते हैं, what do they get from our assignments? I wanted to put this down because I think बहुत सारे लोग आप में से इसके साथ relate कर पाएंगे. 5 चीजें हैं जो coaches help करते हैं अपने clients को achieve करने के लिए. First is a clearer direction on how to run the business. First is what should the business be? सो बिजनेस को समेटा कैसे जाता है, बिजनेस को फोकस पे कैसे लेके जाया जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर बिजनेसमैन आर डूइंग सो मेनी थिंग्स
they're into unallied projects, unallied products. जो भी अपॉर्चुनिटी हमें आती है हम दिखते रहते हैं, लेते रहते हैं और हमारा डायरेक्शन एब्सोल्युटली खो जाता है उसमें. And therefore the first thing that we deliver, and this is some of the 5 things that our clients have told them. So when we ask them ki what value did you get from an EPOS, this is the top 5 things that we have heard them say, that I now know what is the clear direction for my business, मुझे क्या करना है. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास. वी हैव एन ईपॉस क्लाइंट, ब्रांड सेटअप करना है, दे मेक कॉस्मेटिक्स एंड न्यूट्रोस्यूटिकल्स, एंड हमें ब्रांड बनाना है. दे ऑल्सो डू OEM मैन्युफैक्चरिंग. इट टुक अस अबाउट 3-4 months to help them understand these two things are very different. The product may be the same, you might be selling the same toothpaste at both places, but the entire sales and distribution system, model, methodology, the market, the consumer, everything is different. और एंटरप्रेन्योर्स ये सोचते हैं कि हमने माल बना लिया तो बेचना आसान है. आई थिंक इट्स जस्ट द रिवर्स. माल बनाना बहुत आसान है, उसको बेचना सही तरीके से, अपने टारगेट ऑडियंस को बेचना और फोकस रखना that this is my focus, this is my customer, this is my product. I think most of our customers get tremendous value in becoming clearer कि मुझे मेरे बिजनेस को किस डायरेक्शन में, किस दिशा में लेके जाना है. दूसरा जो उनको फायदा मिलता है कोचिंग से is they become better leaders. Because an entrepreneur and a leader are two different things. Entrepreneur is the founder of the organization, they start a business, but becoming a leader is about creating a संस्था. और संस्था एक पजल जैसी है, बहुत सारे फंक्शंस हैं उसमें, हर फंक्शन का एक रोल है, प्रोसेसेस हैं, सिस्टम्स हैं. which brings me to the third point, is that we help organizations create well designed systems that work together. because ये एक सिस्टम है, ये गियर है, एक दूसरे के साथ जुड़ के चलता है. सो कोई एक चीज से कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला. HR का सिस्टम होना चाहिए, फाइनेंस का होना चाहिए, ऑपरेशंस का होना चाहिए, कलेक्शंस का होना चाहिए, एंड द होल थिंग has to work together. So one of the very common feedbacks we get is that EPOS helps us create those systems and ensures that it all works together in the system to deliver business results, which is basically improved financial performance. So all of our clients, whether it is a bad market scenario, I have examples. I think जब हम GST लागू हुआ था तो तब भी हमारे बहुत सारे clients थे. A lot of people were suffering. But our clients consistently grow because when you pay attention to something, it improves. And what coaches do is they help you bring attention to things in your organizations which are not being managed well. और ज़्यादातर क्या होता है कि हम अपनी internal efficiencies को बाहर फेंकते हैं. So we don't have a good collection mechanism, we don't have a good process, we don't have a good production process, we don't have a good production planning process, we don't have a good delivery process for our clients. And therefore our business doesn't grow, and therefore we think यार GST लग गया, competition बहुत है, चाइना का प्रॉब्लम है. वो सारी चीजें सच हैं, but if you focus on your internal efficiencies, your internal process, 100% गारंटी है कि आपका बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा. योर प्रॉफिटेबिलिटी विल इंप्रूव, योर कैश फ्लोज विल इंप्रूव, योर क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट विल इंप्रूव. और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं that helps. आपका स्टॉक क्या पड़ा है, where is your working capital stuck, and this is when जब वहां से वो working capital ढीला होता है, that's where it starts to hit your bottom line. But most of us don't realize it. We have an EPOS client who has a business of 40 crores and is sitting on a inventory of 20 crores. Finished good inventory की बात कर रही हूँ मैं, raw material WIP गिन भी नहीं रही हूँ उसमें. And for the last 6 months, we have just been working with them on creating a system, of reducing their inventory, of making sure that they figure out what is the right level of inventory I need to keep. Because Indian business ऐसे चलता है कि मुझे मालूम नहीं कब क्या चीज काम आ जाएगी. तो उनके साथ हाथ उनका पकड़ के चलना, उनको पहले तो ये दिखाना कि इतनी inventory is not good for business. So you have to simulate financials, you have to make sure that they're with you on this path. But जब वो देखने लगते हैं, suddenly the business turns around. It's the same business, it's the same market, but our internal inefficiencies lead to a poor financial performance. And therefore, the fourth big win for coaching for us has been consistent improved financial performance for our clients. And I think last but not the least, and I cannot stress it enough, most of our business leaders live very, very unbalanced and therefore stressful lives.
We don't have time for body, we don't have time for spirit, we don't have time for family, we don't have time for society. तो खैर बहुत down the ladder आती है, but essentially हमारी पूरी जिंदगी भाग दौड़ में निकल रही है, भाग दौड़ में और फायर फाइटिंग में. एंड देयरफॉर जब आपके सिस्टम्स लगने लगते हैं, जब संस्था में एक काम करने का तरीका लगने लगता है, द लीडर फील्स रिलीव्ड. They feel that the organization can now work without them having to be there to solve problems. The leader is needed, but is needed for very different things. But आज जो लीडर काम कर रहे होते हैं वो तो अपने नीचे वालों का काम कर रहे होते हैं, कस्टमर के कॉल अटेंड कर रहे होते हैं, परचेज कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं. That is not the job of a CEO leader. And therefore once आपका ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम जब बनता है और आप जब एलिवेट होते हैं, सही में जब सीईओ बनते हैं, you have time on your hands to do things which are fulfilling for the business and fulfilling for your life. So these are the top 5 things that coaching delivers for MS. We have seen it deliver. This is something that our clients tell us, and I wanted to share this with you. Of course, I think as a coachee, you need to be sure why is it that you're seeking a coach. Because growth करनी है, अपना dream को realize करना है, that's the only reason why you need coaching. If you want to do a job in the form of a business, I don't think you need coaching. I don't think that's an investment that will make sense. But everybody out there who wants to grow their business, who wants to win in the marketplace, coaching is something which is extremely essential, very powerful. और अभी तो बहुत सारे options हैं market में. Please go out, learn more, seek. And I think when you seek, you find the right coach also for yourself. So I think that's a quick recap for me. Anybody who has questions on this topic? No questions. No questions. Shyam sir, you want to say something? Okay, I can take over. I think there was a question from Mahendra Rathi. Yes, I think Mahendra Rathi sir has also. Mahendra ji. कटे गेड़ा. Mahendra ji. Hello. Yeah, I will. I will share करिए. I was not able to unmute earlier. Mm-hmm. Okay. Yeah, I just was looking for some examples, some who have a balanced life leaders. There are many examples. Shyam sir is an example himself. बहुत सारे examples हैं, पर आपके महेंद्र सर, आपके दिमाग में शंका क्या है? So what is behind? Okay, I'm just trying to see, meaning, how are they balancing between their work commitments and their overall life commitments? So today, what stops you from having a balance in life, Mahendra ji? If I can ask you a counter question. Ma'am, actually, there's too much data, meaning too many reviews to be done. Mm-hmm. That is eating away a lot of my time. So what is it that you need to improve therefore? If I can lessen my reviews, but if I nazar hati durghatna ghati, so it becomes difficult to leave something. हाँ, बट वो नजर सिर्फ अगर आपकी ही होगी तो फिर बहुत दिक्कत की बात है. बट अगर कोई सिस्टम चल रहा है संस्था में, there are reports that are coming to you, and I'm not sure. I mean, of course, we'll have to get into a detailed discussion with you in terms of what reviews, because generally when we coach our clients, we fix 1 day for reviews, Mahendra ji. If you're spending more than one time, and it depends on the size of the organization. Small organizations may not even need a full day. You can do your reviews in 2 or 3 hours. But it depends on what is it that you understand what a review is. What is the data that you're receiving before you get into the review? Because reviews में ज़्यादातर क्या होता है महेंद्र जी, हमारा जो experience है, they go on forever. So 3 घंटे 4 घंटे एक मीटिंग चलती है और कोई तथ्य नहीं निकलता उसमें, क्योंकि ना एजेंडा होता है मीटिंग का, ना कोई रिपोर्ट्स होती हैं that you get for the function, that what is the performance of the function, and therefore reviews are just stories. They are just stories of ये क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, कहीं बारिश हुई थी, कहीं ये हुआ था, कहीं रोड क्लोज थी, कहीं क्लाइंट नहीं मिला. Now these are not helpful at all. And therefore, how do you as a leader manage reviews? What is a review and how do you conduct a review? I think that's an art and science in itself, Mahendra sir. So usko examine karna padega. If I go back to my own experience, all the CEOs I have worked with, they had a very hectic work life. So let me be very clear. They were in office for at least 10 to 11 hours. I'm not saying
6 घंटे में काम हो जाता था. That's not the point. But they had time for other things. That's number one. And I think the kind of work they did in those 8 to 10 hours was very different than what I see MSME leaders do. So they would not pick up customer calls, for example. They wouldn't go to factory rounds, for example. They had their list of high value activities that they needed to do. But हमारा MSME का जो बेचारा लीडर है वो तो लो वैल्यू टास्क ही करता रह जाता है. वो तो परचेज वाले से कोऑर्डिनेट ही करता रह जाता है कि यार सरिये कब आएंगे. Now I think that is something that we need to attack. We need to figure out what are we not doing right. So I think it's not an easy answer, Mahinder sir, but I have seen many leaders with a fantastic balance. They work very hard and yet they play very hard. Okay, ma'am. Just one additional question there. So, just a thought on how we can make like reviews. Okay, that is a story. I mean, as you said, they become more of a story discussion actually. So, how can we improve that? Because people. It's a long conversation, and we did a Wild India session on how to manage your people. We covered reviews. We will do another people management session, Mahinderji. So stay tuned, and we'll get back to you on that. Fine. Thank you, ma'am. I will. Anji, Manoj Kumar ji. Nehal has a question. Yes, I thought Nehal is usually Manoj Kumar is for the first time, so I, at least to my memory. Manoj ji, unmute kariye please. Self-employed person को coaching की requirement कैसे होती है? Self-employed, मतलब self-employed. I'm a self-employed person. Yeah. But you run a business? You have a team? I have a team of only 2 persons. Only 2 persons. You want to grow? Yes, definitely. Then you need a coach. Answer is simple. Okay. What you do, कल तक जो करते आए हैं मनोज सर, वो आपको आगे नहीं ले जा सकता. आपको कुछ different करना पड़ेगा to get different results. Okay. Therefore, you need to know how and you need to know what. Both. Okay. Thank you. Yeah. One last question. Nehal, you have a question? सुमन मैम, जो आप कोच की बात कर रहे हो तो मेजॉरिटी टाइम ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन लीडर मायना समझता है कोचिंग का, मगर मेजॉरिटी टाइम पे ये होता है कि उनकी जो सिस्टम है, उनके जो कोवर्कर्स हैं, वो लोग कोचिंग को ऐसे समझते हैं कि दिस इज समथिंग लाइक, हाँ उसको मतलब लीडर को करना है, वो कर रहा है, करते हैं, होगा, देखेंगे. वो अप्रोच मेजॉरिटी मैंने देखा है. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही है कि कहीं पे भी हम किसी एक्सटर्नल कोच को या फिर HR एजेंसीज को लाइनअप के लिए लेके आते हैं तो वो सुनते हैं, फिर उसके पीछे उसके फॉलोअप के लिए बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसके बाद भी जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं निकल के आता है. तो वो क्यों होता है और उसके लिए क्या करना चाहिए? I think नेहल सर, जहाँ तक HR कंसल्टेंट्स की बात है वो कोचेस नहीं है. मैंने आपको अभी थोड़ा टाइम पहले I was talking about difference between coaches and consultants. Coaches are experts in human behavior and organizational design and behavior. So resistance is common. जब भी change होता है, resistance आता है. Even if we were in their place, probably we'd be the same. But coaches are experts in knowing how to navigate those waters. So अगर आपने सही कोच पकड़ा है, they will make sure that things will change देर सवेर. कल कुछ नहीं हो जाएगा. तो सबसे पहले तो I think the leader has to be assured कि सबसे पहले काम उसको अपने ऊपर करना है. उसके बाद उसकी टीम के ऊपर भी काम होता है. हम करते हैं काम, we work with teams. And yes, I agree with you. There is resistance that happens, but it's not a challenge that cannot be solved. We have solved it. We have teams which are completely resistant to change. We have a new EPOS client और कल ही हमारी डिस्कशन उनके साथ हो रही थी कि उनकी जो HODs की टीम है वो बहुत रेजिस्टेंट है उन्नति को. But we know ways and mechanisms to work around those teams. और उसमें साम दाम दंड भेद सब लगाने पड़ते हैं. कोच की वो एक्सपर्टीज ही है वो कोच की. So अगर सही कोच ढूंढ लेंगे नेहल सर तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए. Will it take time? Of course it will take time. It's not magic. Sometimes I think our issue also is कि we want quick results. We spend 10 years
gaining weight, but we want our weight to go away in 2 days. That doesn't work. It will take an equal 3 years to lose the weight that you have gained. So थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा patience लगता है, but I think I want to stress you need to get the right coach. Okay. Shyam sir, you want to say something? Yeah, I think Neil has done EPAD, therefore I can communicate to him that way also कि आप आपके leadership quality पर जब काम करते हो तो पहली चीज तो आपके खून में ये उतरनी चाहिए कि आपको responsibility लेनी पड़ेगी. You have to, you really cannot say people don't. You are saying I'm not able to get. That's a different statement. Therefore, first of all, focus on yourself कि आपके पास आपके क्या systems हैं, आपके क्या role model के actions हैं जिनसे कि आपके लोग inspire हो सकें. I am using the word inspiration, not motivation. So you can't motivate your people. You can inspire them by your leadership quality. But after all, you have recruited people on certain basis, and if you have not done a right job, you have to change it. You have to change it. We also recommend sometimes drop people. Go and read the book Good to Great. और उस किताब का पहला लाइन है Good is enemy of the great. जब आप थोड़े अच्छे हो जाते हो तो आप अपने ही दुश्मन बन जाते हो. और उसी किताब में लिखा है कि आप विजन जब क्रिएट करो ऑर्गेनाइजेशन में तो अपनी पूरी टीम के साथ बस में बैठ के क्रिएट करो, और अगर उस विजन से कोई तालमेल नहीं रखता है तो हिम्मत रखो कि उसको बोलो कि बेटा बस से उतर जा तू. ये हम नहीं करते हैं. Then you have reasons, and we are going to discuss in communication today कि why don't we do this? Why do we think that way, that it will happen by magic? It will not happen by magic. Everything revolves around leader. Everything. You have to ask, how can I? And we're going to deal with that in the communication part. 10 minutes रुकी और बस. And I think Shyam sir, I just want to add something. It's I think a very, very valid point. I think in our heads as leaders, we have to imagine that we have, हमारे पास 11 ही सीट हैं. 1 मिनट के लिए आप मान के चलो कि विराट कोहली के पास 11 ही प्लेयर्स हैं. Does he have to choose or not? वो तो सबको तो नहीं रख सकता ना. But I think we think of our business very differently. Sports is a very different thing. It's the same thing. To move forward, you also need the capability that helps you move forward. हम सेम कैपेबिलिटी जो चेंज नहीं करना चाहती है उसके साथ हम मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं. सो समटाइम्स वी हैव टू टेक टफ डिसीजंस. यू हैव टू ड्रॉप द 12th guy, you have to drop the 13th guy. It doesn't work. You need a high performing team. So of course the onus is on the leader, but sometimes these things need to be done, and we do it in our EFOS coaching sessions. Okay, all right. I think Harish, we are short of time. We still have questions. I still see Hans and Ritesh, you have questions. Can you just put it on the chat box and I will respond to you. Okay, I will start sharing my screen. Okay. So today we have a subject of coaching, and we are now moving to success in business through communication. Okay, let me just find out my file. I deleted it, or maybe this is something surprising. Okay. Okay, communication for success is my topic. मैं आपको एग्जाम्पल अगर दूं तो सबसे पहली मेरे कम्युनिकेशन के संबंध में जो एग्जाम्पल आती है वो आती है द्रौपदी के एक स्टेटमेंट की. द्रौपदी ने, पांडवों ने जब एक बहुत बड़ा महल बनाया और ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की जिसमें सूखा पानी वाला लगता था और पानी वाली जगह सूखी लगती थी, और उसमें जब दुर्योधन वॉकिंग किया तो
सूखी जगह पर उसने अपने कपड़ों को ऊंचा किया क्योंकि उसको भीगा दिखाई दे रहा था। द्रौपदी का स्टेटमेंट था कि अंधे का बेटा आखिर अंधा ही तो होगा, and that became the beginning of, may not be beginning, maybe there are other reasons earlier also, but that became the solid foundation of Mahabharata, जिसमें 18 अक्षौणी सेनाएं लगी, कितने करोड़ों लोग मारे गए। कम्युनिकेशन के अंदर वो पावर है, और उतनी ही पावर कम्युनिकेशन, अच्छे कम्युनिकेशन में ये भी है कि आप दूसरों का दिल जीत सकते हो, आप आपका काम निकाल सकते हो, आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सो आज के टॉपिक में मैं आपसे बात करूंगा कि सफलता के लिए कम्युनिकेशन की क्या भूमिका है और आप क्या कर सकते हो उसमें। याद रखिए कि वी डोंट बिलीव इन नोइंग, वी बिलीव इन एप्लीकेशन ऑफ द नोन। ज्ञान बोझ है, उसको बढ़ाओ मत, बहुत बोझ है तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी। और अभी यूट्यूब और व्हाट्सएप ने तो ज्ञान को इतना बढ़ा दिया है कि जिसको देखो वो मैसेज को फॉरवर्ड ही करता है। तो आपको अभी बैलेंस करने के लिए बड़ा बैलेंस होना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल टू से नो, एज यू आर इन ए पोजीशन टू से पर्सनली नो, यू विल हैव टू आल्सो से नो टू इनफ्लोइंग मैसेजेस, कम्युनिकेशन। सो सफलता की अगर मैं बात करूं पहले, तो सफलता इज अचीवमेंट ऑफ योर गोल। जब तक हम सफलता को समझेंगे नहीं, तब तक कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को जोड़ नहीं पाएंगे। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि पहले हम सफलता की परिभाषा को पूरी तरह जान लें। बहुत ब्रीफ परिभाषा है, लक्ष्य की प्राप्ति सफलता है। अचीवमेंट ऑफ योर गोल विल टेक यू टू सक्सेस। एक चीज और, थोड़ा शॉक लगेगा, आप या मैं कभी भी जीवन में सफल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे गोल सफलता के साथ साथ बदलते रहते हैं। इसलिए सफलता एक यात्रा है, एक मुकाम नहीं है, एक डेस्टिनेशन नहीं है। सफलता एक जर्नी है। सो लिव इट लाइक ए जर्नी एंड एंजॉय इट। डोंट थिंक दैट यू विल रीच देयर एंड रिलैक्स। You have to relax while traveling the journey. That is what we call balancing the wheel of life. If you are tired in doing business, you are inviting problems for you and your family and your business. Therefore, we will have to see how much communication can help us. And when I talk about goal, I will talk what is goal requirement. Goal has to be, we say, master, measurable, attainable, stretch, enthusiastically written, and time bound. Very important quality is measurement and time bound. Realistic. अगर गोल आप बनाएं, लक्ष्य बनाएं, तो अपने आप से पूछें कि क्या इसमें मास्टर की क्वालिटीज हैं, क्या मैं माप सकता हूं। ये गोल नहीं होगा कि मैं वजन गिराना चाहता हूं, मेजरेबल नहीं है। आप बोलोगे 90 किलो से 85 किलो, टाइम बाउंड है, कितने समय में, और गोल की सक्सेस की जर्नी यहां से शुरू होगी। आपकी सफलता की जर्नी यहां से शुरू होती है। मैं नहीं समझता हूं भारतीय स्कूलों में गोल सेटिंग प्रोसेस सिखाया जाता हो, इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रथा ही नहीं है। नीदर वी आर टॉट गोल सेटिंग, नीदर वी आर टॉट how to achieve goals through the setting of goals. But anyway, we have to learn. So we are learning. So success की अगर मैं परिभाषा को थोड़ा डिफाइन करूं, तो सफलता आपके परिणाम से नापी जाती है। Whatever results you bring in will decide what success you have. Your results come when you act. Please understand, act, not know. People think they have seen the YouTube video and therefore they have known. No, you cannot do anything unless you do yourself. And that's the challenge Indian society has. Because we are masters in seeing and believing. हमारा देश श्रुतियों का देश है। कृष्ण ने गीता को जबानी बोला, अर्जुन ने सुना, दोनों ने नहीं लिखी है। अर्जुन और कृष्ण के संवाद को संजय सुन रहा था मीलों दूर बैठकर और देख रहा था।
उसने भी नहीं लिखी है, गीता किसी और व्यक्ति ने लिखी है। राम की घटना वाल्मीकि ने राम के जन्म से पहले लिख दी थी और तुलसीदास ने बहुत सारे सालों के बाद लिखी है। पता नहीं हमारे देश में इस तरह की ट्रेडिशन क्यों नहीं है कि हम एक्शन को प्रायोरिटी दें, जानने को प्रायोरिटी बहुत देते हैं। एक्शन के बिना आपके रिजल्ट नहीं आएंगे और रिजल्ट के बिना। सॉरी, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है श्याम सर। इफ यू आर शोइंग सम स्लाइड्स वी आर नॉट एबल टू सी देम। माय गॉड, व्हाट आर यू सीइंग इन ऑन द स्क्रीन? We are just seeing, we don't have any slides. I'm sorry, I had to really interrupt you. No, it is very good that you told me, but I know जब ऐसे बीच में कोई बोलता है ना तो मन तो करता है भाई खून ही कर दो उसका, but sorry. Okay. शुरू में हुआ था, it started, but then I think I don't know what happened. It just went off. Okay, I'll sort it out maybe. Share screen and sharing of the screen and Yes, it has started sharing now. Yes. Sir, full presentation. पहले स्टॉप, हाँ पहले मेरे को स्टॉप करना पड़ेगा, फिर शेयर करना पड़ेगा और फिर मुझको शेयर करना पड़ेगा। अभी आपको क्या दिख रहा है? आपकी स्क्रीन दिख रही है सर। अब प्रेजेंटेशन मोड में चले जाएंगे तो स्लाइड दिख जाएगी हमें। अभी हाँ, ऊपर से। Yes, I think it's perfect. Yes. Success, you are seeing success, result, Yes. Yes. action. Yes. Thanks for changing. Otherwise, I would have been talking and people would be wondering what the hell is this going on. This is communication. Anyway, technology also. Yes, we have many attentive people. Raju bhai sent me a message. A lot of other people send me a message. Slide nahi dikh rahi hame also. Oh, thank you, Raju bhai, thank you. Action, and action depends on our thought. जब हम कोई एक्शन करते हैं तो उसके पहले भूमिका में, उसके पहले बैकग्राउंड में कोई विचार होता है। थोड़ा सा समझें अगर, तो विचार माइंड की क्रिया है और ये इसकी गति, मन की गति, हमारे शास्त्रों में तो मन की गति का वर्णन किया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से, साइंस के हिसाब से, साइंस कहती है कि विचार की स्पीड लाइट की स्पीड है, क्योंकि लाइट की स्पीड से कोई चीज ज्यादा नहीं चल सकती है। तो भी लाइट की स्पीड भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, इसलिए गति मन की बहुत तेज है और वो इतनी सूक्ष्म और तीव्र होती है कि हम उसको पकड़ नहीं पाते, एक्शन को हम देख पाते हैं। इसलिए आपकी सक्सेस की फाउंडेशन आपका विचार है। Please understand, if you are not succeeding, you have to dig down into yourself. Where are you faltering? You're always looking in your employees, you're always looking in GST, you're always looking at Sarkar, you are always looking Notebandi, you're always looking people, wife, husband, vagara, vagara. No, everything is within you. And that is the communication we have to get into. Therefore, I will say desired success will come when you have different results. Since we are trying to communication and success को मैं जोड़ रहा हूं, इसलिए मैं आपको पहले सक्सेस के बारे में बताऊं कि डिजायर्ड सक्सेस आपकी अलग नतीजे लाने पड़ेंगे, उसके लिए बदलाव करना पड़ेगा एक्शन में, और उसके लिए आपको रूपांतरण करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा अपने विचारों का। विचारों में बदलाव नहीं होता है, विचारों में रूपांतरण होता है, सर्किट्स चेंज ब्रेन के अंदर अगर आप स्टडी करेंगे तो। And that is what we try to do in EPAD, कि unless you change your actions, you will not get different results and you will not get different desired success. But change in action will only come when you transform your thinking process. तो सफलता को मैंने थोड़ा आपको परिभाषित कर दिया, थोड़ा फाउंडेशन बता दिया। इसका मतलब आपके विचारों पर आकर रुक गया हूं मैं। अब मैं आपको कम्युनिकेशन पर ले चलता हूं। कम्युनिकेशन हिंदी में संचार बोलते हैं और सफलता बोलते हैं सक्सेस को। इन दोनों के साथ में तालमेल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। कम्युनिकेशन विद अदर्स, जो हम कम्युनिकेशन समझते हैं, हम सोचते हैं मैं अक्सर बोलूंगा और वो कम्युनिकेशन कहलाएगा, ऐसा नहीं है। डिटेल में जाएंगे तो कम्युनिकेशन बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, संचार बहुत बड़ा वास्ट गहरा सब्जेक्ट है।
पहले हमारे दिमाग में यह आता है कि संचार या कम्युनिकेशन दूसरों के साथ होता है, और दूसरों के साथ चूंकि होता है इसलिए मैंने आपको जैसे द्रौपदी का स्टेटमेंट बताया, तो कम्युनिकेशन का जो ऑनस्लॉट हो रहा है इसके प्रति आप कितने सावधान हो, आप कितनी व्हाट्सएप मैसेजेस को जबरदस्ती भेजते हो, देखने की बात तो अलग करो। मैंने भारत देश में देखा है कि भारत देश में अगर मेरे पास कोई मैसेज आया, जिनके पास आता है, एक कोई वीडियो आ गया अच्छा लगा तो उसको फॉरवर्ड कर दो सब दोस्तों को, सब लोगों को जिनको भी जानते हो। आपको किसने अधिकार दिया है कि आप उनको भेजो? ये सवाल नहीं पूछते हम, क्योंकि हम भला इंटेंशन हमारी बहुत अच्छी है कि देखो इसको जानने से पता लगेगा। शायद हम ये कहना चाहते हैं कि मैंने एक नई चीज सीखी, और वही भ्रम है हमारा कि हम सीखने में बहुत विश्वास रखते हैं, हम करने में बहुत कम विश्वास रखते हैं। अदर्स के कम्युनिकेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यू हैव टू गार्ड अगेंस्ट एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, especially through digital media, by your own alertness, by your own choices, by on your मैं जब मेरे पास मैसेज इस तरह के आते हैं तो मैं तुरंत उनको जवाब देता हूं कि सर आप मेरे को रोज एक ज्ञान का मैसेज भेजते हो, मेरे पास तो ज्ञान की वजह से बाल झड़ गए हैं सब, मेरे को ज्ञान से अब इंटरेस्ट नहीं है, आप इनको या तो भेजना बंद कर दीजिए, अदरवाइज मैं आप मेरी डायरेक्टरी में से नाम डिलीट कर दूंगा। आप मेरे घर में जबरदस्ती नहीं घुस सकते हो और आपको घुसना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं इस फोरम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जबरदस्ती मैसेजेस को फॉरवर्ड मत करिए, और अगर करते हैं तो बताइए कि उसमें आपको उस भेजे जाने वाले व्यक्ति के लिए क्या फायदा दिख रहा है, उसको कम्युनिकेट करो। मुझे लगा ये आपको शेयर करना चाहिए क्योंकि आपके काम की ये चीज लगती है मुझे, शायद उसके काम की हो तो ही विल से थैंक यू, शी विल से थैंक यू। So that's about the communication with others. But I think it is very small component compared to what is your communication within yourself. अब ये कम्युनिकेशन की किताबों में आपको नहीं मिलेगा, ये हमारी खुद की रिसर्च बोलती है कि हम अपने आप से वार्तालाप जब करते हैं तो वो फाउंडेशन होता है कि हम बाहर क्या वार्तालाप करेंगे। So what is our communication within us? Within us का मतलब ये है, मैंने अक्सर भारत देश में ये स्टेटमेंट बहुत सुना है, आप जॉब का एम्प्लॉयमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए इंटरव्यू लीजिए और आप बोलिए ये काम कर सकते हो, बोलता है मैंने कभी किया नहीं है, मेरे को आता नहीं है, मैं ये कर नहीं सकता हूं। They have a reason why they cannot do. Actually, we in EPAD recommend कि इस स्टेटमेंट को काट दीजिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बैठे हुए अगर आपका नोट पैड है तो उसमें वाई आई कांट लिखकर और उसको काट दीजिए। मैं हेमंत सिंह किरबत को देख रहा हूं। हेमंत जी आप हैं? हरीश, कैन वी अनम्यूट? हरीश? Yes, sir. हेमंत जी आपने इसको बहुत अच्छी तरह से अप्लाई किया, तो व्हाई डोंट यू शेयर कि व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस, मे बी समबडी विल गेट इंस्पायर्ड। Sir, I'll try to definitely. I can able everyone. When I joined EPAD last year, तो मेरे को ये कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस किया गया। एक तो सबसे पहले कि आप कैसे अपना प्रोस्पेक्टिव कि मैं नहीं कर सकता हूँ से मैं कैसे करूँ, एक ये बहुत बड़ा शिफ्ट था। इजी नहीं था मेरे लिए, बिकॉज एक आदत बनी हुई है कि हम लोग ये कह देते हैं अरे ये काम तो मैं नहीं कर सकता हूँ, या मैं उसको ये कैसे बोलूँ। तो उसकी जगह ईपैड कोर्स में सर से, मैम से काफ़ी इनपुट मिला, एंड एक प्रोस्पेक्टिव अप्रोच शिफ्ट हुआ जो टाइम लगा है, अभी भी पूरा नहीं हुआ है मैं यूं बोल सकता हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक हुआ है। दी अप्रोच हैज चेंज, एंड उसमें जाने के बाद अपने आप को एक क्वेश्चन पूछता हूँ
कि अगर ये चैलेंज आया है तो इसको कैसे सॉल्व करें या फेस करें, उसका सोल्यूशन क्या है। सो वो एक बहुत ही मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव चेंज है कि अभी कुछ भी चैलेंज आता है या कुछ सिचुएशन होती है तो उसमें नहीं हो सकता करके उसको ख़त्म नहीं किया जाता, उसको हम ये कहते हैं कि इसका सोल्यूशन निकालते हैं, अपने आप से पूछते हैं। देन ऐसे ही सेम हमने अपना, मेरी बहुत बड़ा टीम तो नहीं है बट जो भी लोग हैं वो जैसे आते हैं कि हेमंत भाई इसको कैसे करना है, तो कम्युनिकेशन में कीपैड में यही सीखा है, फॉर अ गुड कम्युनिकेटर इंस्टेड ऑफ गिविंग सजेशंस आप उसी से पूछिए कि आप कैसे करना चाहोगे, आस्क क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आप एक दो पूछेंगे तो वो अगला बंदा भी कुछ ना कुछ आपको अपने आप ही आंसर दे देगा कि हाँ ये ऐसे कर सकते हैं। दूसरा कम्युनिकेशन में ही अगर मैं बोलूँ आपको तो ये भी सीखा है कि बोलना ही इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर ऑल्सो। सुनना भी उतना इम्पोर्टेंट है फॉर अ गुड कम्युनिकेशन जितना बोलना। एंड जब आप सुन रहे होते हैं यू शुड बी 100% देयर। आप मोबाइल पे या किसी और गैजेट पे नहीं हो, अगले पर्सन को भी, चाहे वो आपका एम्प्लॉय है या कस्टमर है या आपकी फैमिली है, दे अंडरस्टैंड कि हाँ भाई आपका 100% अटेंशन आपने उनको दिया हुआ है एंड यू आर लिसनिंग टू देम। थैंक यू Again, हेमंत, थैंक यू right. हेमंत जी, थैंक यू वेरी मच। मैंने देखा था कि आपने कोविड-19 को एक खतरा ना देखकर, एक अपॉर्चुनिटी देखकर आपने क्लाउड किचन भी क्रिएट किया है कुछ, और मेरे ख्याल से वो क्लाउड किचन आपके उसी सवाल से आई है कि मैं अपने धंधे को कैसे बढ़ाऊं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बाजार बंद है, कोविड-19 आ गया है, व्हाई कांट आई की बजाय मैं अगर पूछूं कि इस सिचुएशन में मैं कैसे कर सकता हूं, आई थिंक दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव कि हाउ कैन आई आपने एड्रेस किया है। बिल्कुल थैंक सर, यू वेरी मच, थैंक यू वेरी Thank मच फॉर शेयरिंग, Right. थैंक यू। सो जिन लोगों ने वाई आई कांट को काटा है उसके नीचे एक और लाइन लिखिए, आपके सामने जब भी कोई समस्या आए तो अपने आप से कम्युनिकेशन में ये पूछिए कि ये मेरे सामने एक चैलेंज है, चुनौती है, पड़कार है, इसको मैं कैसे डील कर सकता हूं। मैंने देखा है, अब कम से कम 50,000 लोगों के साथ काम किया है, तो पहला हमारे दिमाग में, हमारी पूरे सोसाइटी में ये आता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। हमारे सामने पहले चैलेंजेस पत्थर की तरह से दिखाई देते हैं, जैसे कि वो रुकावट हो। ध्यान रखिए, चैलेंज कभी रुकावट नहीं है, चैलेंज को न डील करना रुकावट है। पत्थर पड़ा हुआ आपको नहीं रोक सकता है, आपकी उछलने की ताकत बढ़ा सकती है। आपको बाहर की बरसात कभी नहीं रोक सकती है, आपको छाता रखना पड़ेगा। We are generally criticizing the rain, we are generally criticizing the stone lying in the road. No, how can I want to do this, tell me how can I। आज से ये पूछना शुरू कीजिए। मैं आपको छोटा सा इंसिडेंस देता हूं कि रिलायंस में धीरू भाई अंबानी ने 91-92 में दो पब्लिक इशू लाए थे, रिलायंस पॉलीएथिलीन एंड रिलायंस पॉलीप्रोपिलीन। पैसे की कमी नहीं थी क्योंकि पैसा तो धीरू भाई के नाम पे मिलने लगा था, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, और 9 मिलियन टन की रिफाइनरी को जामनगर में एस्टेब्लिश करने का प्रोजेक्ट प्रपोजल था, और उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगे, बहुत सारे पब्लिक के, बहुत सारे कई तरह के लोग थे जो ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि किसी भी सफल व्यक्ति को हर असफल व्यक्ति रोकना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं रह जाऊं और ये आगे निकल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब वो उसके सामने वो चैलेंजेस आए तो सबने ये कहा कि आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आप एक्सपीरियंस नहीं हो, रिफाइनरी में नहीं है, 9 मिलियन टन की रिफाइनरी डाल रहे हो, इस वक्त भारत देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी 6 मिलियन टन की है, आप कैसे कर सकते हो, जामनगर बहुत दूर है, एक समुद्र के किनारे है, पाकिस्तान की बॉर्डर पर है, वगैरह वगैरह। वाई आई कांट के बहुत सारे सवाल उनके सामने आ गए। धीरू भाई ने शायद एक ही चीज कही, यार मुझे ये मत बताओ मैं क्यों नहीं कर सकता, ये बताओ कि मेरे को करना है तो क्या करना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मेरे को ये बताओ कि आई वांट टू डू इट, प्लीज आस्क दैट क्वेश्चन टू योरसेल्फ आल्सो, आई वांट टू डू दिस, टेल मी व्हाट शुड आई डू, हाउ कैन आई।
व्हाई आई कांट में फंस गए तो उसके जाल में से कभी जिंदगी भर नहीं निकल पाओगे। ध्यान रखना, ये कम्युनिकेशन आपका करेक्शन बहुत जरूरी है आपकी बिजनेस की सफलता के लिए, लीडर की सफलता के लिए, आपके परिवार की सफलता के लिए। तो उसने कहा ये बताओ कि मुझे क्या करना पड़ेगा। तो कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स वगैरह ने जब उनकी गिनती की तो बोला वायबिलिटी के लिए 9 मिलियन टन को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए 9 मिलियन टन क्रिटिसाइज हो रहा है और हाउ कैन आई में ये आ रहा है कि इसकी कैपेसिटी उठानी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी? 30 मिलियन टन, 30 मिलियन टन। गो हेड, स्क्रैप करो, दूसरा पब्लिक इशू लाओ, 30 मिलियन टन को लगाओ। आज भारत देश वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में लेके बैठा हुआ है एक इस सवाल से कि मैं ये करना चाहता हूं, हाउ कैन I don't want to go and meet the God saying I have failed and come here. He will throw me back into the earth. I want to succeed, even struggle and succeed, even try to succeed and keep trying, may not reach the destination, but how can I is the only answer for powerful communication for success. अपने आप से सवाल सिर्फ यही पूछना है कि मुझे करना है और ये कैसे हो सकता है। मेरा अनुभव ऐसा है कि जब आपका कमिटमेंट पीक पर आ जाता है, जब आपकी लगनता जबरदस्त हो जाती है, तो परमात्मा के पास कोई रास्ता नहीं रहता आपको रोकने का। उसने आपकी परीक्षा लेने के लिए रोकने का व्यवधान किया था। वो देखना चाहता था कि बेटा तू सोते सोते सफल होना चाहता है कि कुछ मेहनत भी करना चाहता है। कंप्लेसेंस, आरामदायक जिंदगी इसीलिए डिजाइन की है कि आओ जाओ जिंदगी निकालो और चले जाओ। बच्चे 2 पैदा करो, एक फ्लैट खरीदो, एक बंगला खरीदो, एक गाड़ी खरीदो, इससे ज्यादा तो क्या नहीं। संसार एक्सप्लोर करने के लिए है। आप अपने आप को एक्सप्लोरेशन से शुरू करो पहले। हाउ कैन आई, that's the only question which can help you to explore yourself. How can I? And the mind starts working, you will realize that it will give you solutions. You will never get those solutions. You may not have even thought about those solutions. That's the power. And मेरा अनुभव ऐसा है, because I deal with spirituality much more. I say परमात्मा भी उसकी मदद करता है जो बोलता है how can I, और उसको देखता नहीं है जो बोलता है why I can't, कि तेने अपना जाल अपने आप ही बुना हुआ है, मैं तेरे को क्या करूंगा रोक के। तू अपने आप को रोकने में सक्षम है, इसलिए रोक। सो ध्यान रखिए कि इंटरनल कम्युनिकेशन पर आपको बहुत बड़ी सक्सेस पे डिपेंड करता है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम डिवोट कर रहा हूँ। अदरवाइज कम्युनिकेशन पे बहुत यूट्यूब पे चैनल है, बहुत ज्ञान पड़ा हुआ है, कुछ भी देखोगे हजारों लोग बोलने वाले बंदर की तरह कूदते हैं ऊपर से नीचे। दैट इज नॉट कम्युनिकेशन। हाँ, they will say that you will become a master communicator, you will become a public speaker, great public speaker. तो अपनी पब्लिक स्पीकिंग तो देख ले भाई। तो अब मैं थोड़ा आपको बाहर की तरफ ले जाता हूं कि अंदर से निकलेंगे बाहर तो कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस है। वर्ड्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स और इमोशंस का एक्सप्रेशन और अंडरस्टैंडिंग है, आदान प्रदान है कम्युनिकेशन। सिंगल डायमेंशन, सिंगल डायरेक्शन नहीं है। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, एक्सचेंज ऑफ एटीट्यूड्स, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस। इट्स नॉट वन वे प्रोसेस। हम ऐसा सोचते हैं मेरे ख्याल से भारत देश में कम्युनिकेशन मतलब बोलो बस, खत्म हो गई। कितना अच्छा बोल सकते हो वो अच्छा कम्युनिकेटर है। जी नहीं, जैसे हिम्मत बोल रहे थे कि बहुत बड़ा पार्ट उसमें लिसनिंग का भी है। वी विल डील विद दैट इशू आल्सो। सो इफ आई कम टू कम्युनिकेशन, 4 तरीकों से कम्युनिकेशन होता है: स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। बोलना, पढ़ना, लिखना और सुनना। किताबें यही बोलती हैं, पर मेरे हिसाब से 2 और भी तरीके हैं जो मैं आपको डील करूंगा। हमने जो भी ई-पैड प्रोग्राम में डाला है या हम फैसिलिटेट करते हैं, बार बार कहता हूं मैं, वो हमने हमारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे किया है। कई चीजें भारतीय कल्चर में वैलिड नहीं है, इसलिए उनको नहीं लिखा है, क्योंकि वो हमारे अनुभव में नहीं है। जो हमारी संस्कृति अलाउ करती है उसके अंदर जिसमें हम ढले हुए हैं, उसी के अंदर की हमने जो हमारे अनुभव हुए हैं उनको शेयर किया है।
तो स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा। मैं आपको आज 2 और डायमेंशन में ले जाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं मैं आपको स्पीकिंग क्या है। तो अगर टाइम को देखा जाए तो स्पीकिंग में 30% समय जाता है, एवरेज ग्लोबल है ये। भारत देश में शायद 30 का 50 होगा। रीडिंग कम है, 16% है, राइटिंग 9% है, और लिसनिंग 45% है। थोड़ा गौर कीजिए, लिसनिंग में हमारा समय 45% जाता है कम्युनिकेशन के टाइम का। हम जागते हुए 75% समय, 80% समय कम्युनिकेशन में गुजारते हैं, जिसमें से 45% टाइम हमारा सुनने में जाता है। अब थोड़ी विडंबना शुरू होती है, डिफिकल्टी शुरू होती है। स्पीकिंग माँ सिखाती है। बच्चा पैदा होता है तो माँ स्पीक करने लगती है, सुनने लगती है, स्पीक करने लगती है, एंड दैट इज हाउ कंडीशनिंग से ग्रेजुअली चाइल्ड स्टार्ट्स लर्निंग। स्कूल मेहनत करता है रीडिंग पर और राइटिंग पर, माँ भी करती है, पिताजी भी करते हैं, भाई भी करते हैं। रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, ये सब हमको पढ़ाया सिखाया जाता है। लेकिन गौर कीजिए, जिस चीज में 45% समय जा रहा है उसको हमको किसी ने भी नहीं सिखाया। almost no one has gone through a listening exercise, listening course, जिसमें सबसे ज्यादा समय जा रहा है। उसमें हमारी कोई एजुकेशन नहीं, कोई नॉलेज नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है। Therefore, we are sitting at a very different level of listening, which is the most important component of communication. So, हम लीडरशिप में हेमंत जैसे बोल रहे थे, हम इस पर बहुत जोर देते हैं कि एक लीडर अच्छा लिसनर होता है। पर हम ये सोचते हैं लीडर मतलब बहुत बकबक कर सकता है, वो बोल सकता है इसलिए लीडर होता है। जी नहीं, हाँ, मौका आता है तो बोल सकता है। नरेंद्र भाई को जब मौका आता है तो पावरफुली बोल सकते हैं, पर बाकी जगह कितना खामोश रहते हैं तुमको मालूम नहीं होगा। कितना सुनते हैं, बिकॉज बिना सुने आपका ज्ञान बढ़ नहीं सकता। बिना सुने आप जो काम आज नहीं कर रहे हो बिजनेस में, कल करने वाले हो, उसको सीख नहीं सकते। यू हैव टू लिसन, दिस इज अनफॉर्चुनेट, बट एनीवे। सो मैं वापस अगर स्पीकिंग पे आपको लेके आऊं तो स्पीकिंग में 3 डायमेंशन में हम ईपैड में काम करते हैं। वन ऑन वन स्पीकिंग का मतलब है कि आप जब एक से एक डायलॉग करते हैं उस वक्त भी स्पीकिंग और लिसनिंग होता है। उस वक्त आपको ध्यान ये रखना है कि आपको शुद्ध भाव से विन विन रिलेशनशिप के हिसाब से करना है, लोगों के इमोशन समझने। लीडर को सबसे बड़ा काम वन ऑन वन में ये कर सकता है कि वो अपने विजन को अपने लोगों से शेयर करे। बिलीव मी, हम ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, ई पॉज में काम करते हैं, और बड़े लेवल पर लोगों को मालूम नहीं होता है कि उनका मालिक चाहता क्या है। इसलिए वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं। कभी बोलते हैं इसको कर दो और कभी बोलते हैं मत करो, कभी बोलते हैं बड़ा करो, कभी बोलते हैं बड़ा क्यों किया। तो विजन की जब क्लैरिटी लीडर की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में स्प्रेड नहीं होती है तो वो विजन अलाइनमेंट लोगों के विजन के अलाइनमेंट से नहीं मिलता है। और एक टीम तभी पावरफुल हो सकती है, अगर आप बोट रेस देखते होंगे तो ताल मिलाने वाला लीडर होता है। वो खुद नहीं चप्पू चलाता है, वो खाली हो बोलता है, हो हो हो, और वो हो से जब चप्पू चलता है तो नाव की डायरेक्शन आती है। लीडर का काम यह है कि ताल देना, और ताल देने का मतलब यह है कि आपको आपके विजन को शेयर करना है। वन ऑन वन सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप बड़े ओपन वातावरण में वन ऑन वन में आप शेयर कर सकते हो कि आप संस्था को कहाँ ले जाना चाहते हो, किस तरह ले जाना चाहते हो, ओपिनियन सुन सकते हो, उनके विचार सुन सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है वन ऑन वन। दूसरा है, लार्ज स्केल के लिए पब्लिक स्पीकिंग या प्रेजेंटेशन की स्किल्स बहुत जरूरी हैं। आई लीड में हम बहुत ज्यादा इस पर फोकस करते हैं कि हर इंसान अपना इंट्रोडक्शन अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इतना पावरफुली दे कि उसको खुद को विश्वास हो जाए कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ग्रेट हो सकती है।
जब आपके अंदर विश्वास नहीं है तो वो बाहर नहीं निकलेगा, और बाहर नहीं निकलेगा तो आपका कस्टमर आपसे इन्फ्लुएंस नहीं होता है। इसलिए पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी स्पीकिंग के लिए। You may have to read, you may have to go through courses, you may have to do some practice sessions. तीसरी स्पीकिंग की एक्सरसाइज ये है कि आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करते हो। 2 बच्चे हों घर में या 2 एम्प्लॉइज हों आपके पास, कभी कभार उनके विचारों में बहुत जबरदस्त फर्क होता है। लीडर का बहुत बड़ा काम है कि उन विचारों के अंदर बैलेंस ला के सके। पर अगर हम ये मानेंगे कि 2 विचार अलग हैं इसका मतलब वो गलत है, ऐसा नहीं है। विचार अलग अलग हैं, बस इतना ही है। जरूरी नहीं है कि मेरा विचार आपसे मिलता हो और आपका विचार मुझसे मिलता हो, लेकिन क्या हम ओपन भाव से डिस्कस कर सकते हैं कि मेरा विचार क्यों है, आपका विचार क्यों है। सो लीडर का कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का बहुत बड़ा काम होता है, और ये मैंने देखा है कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस में ब्लॉक है कि ऑर्गेनाइजेशन का लीडर अपने लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं कर पाता है। इसलिए लोग छोड़ जाते हैं, बोलते हैं आया था कंप्यूटर रख के चला गया, आया था उसने भेज दिया, रेजिग्नेशन भेज दिया। नहीं, लीडर कहीं मार खा रहा है, लीडर कहीं अवेयर नहीं है, लीडर कहीं इन्फॉर्म्ड नहीं है, और लीडर ने ये समय नहीं डाला है कि कॉन्फ्लिक्ट, आपस के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से संस्था क्यों लूज करे, मुझे नहीं समझ में आता है। बट ये होता है, दिन रात देखते हैं हम लोग। इसलिए लीडर को इन 3 एरियाज पर काम करना पड़ेगा, और ये सरल नहीं है। चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो, चाहे वो 1-on-1 की सेटिंग में बातचीत हो। देन आई विल से सक्सेस के लिए जो स्पीकिंग है वो बेसिकली यू आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल। लीडर का काम इन्फ्लुएंस करना होता है, और कुछ है नहीं काम उसका। तो इसमें उसको परसेप्शन का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अक्सर मैंने देखा है, मेरा अनुभव लिमिटेड इंडियन क्लाइंट्स के साथ ज्यादा है, तो मैंने देखा है कि बहुत विन लूज का गेम होता है। हर इंसान, खरीदार ये सोचता है कैसे मैं बेचने वालों को पैसे भाव कम करा दूं, बेचने वाला सोचता है कैसे मैं इसको बोतल में उतार दूं। ये विन लूज के गेम में, विन लूज के परसेप्शन में, एटीट्यूड में, एक्शन में और रिजल्ट्स में बहुत गड़बड़ होती है। इसलिए जब आप स्पीकिंग फॉर सक्सेस की बात करते हो तो आपको एक आपका परसेप्शन बहुत क्लियर करना पड़ेगा कि मैं अपने वेंडर से या अपने कस्टमर से विन विन रिलेशन रखना चाहता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके कस्टमर की क्या चैलेंजेस हैं उनको समझिए, और उनको समझने के बाद उनका सॉल्यूशन ढूंढने की आप कोशिश करिए। और जब आप अपने कस्टमर के पास उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेके जाएंगे तो कोई भी कस्टमर आपसे कोई भी चीज खरीदेगा, सर्विस हो या प्रोडक्ट हो। वी डोंट डू दैट, वी आर जस्ट सेइंग कि कैसे उससे पैसे खींच लिए जाएं, कैसे उसको बेच दिया जाए, धक्का मार दिया जाए। जी नहीं, स्पीकिंग फॉर सक्सेस में आपको विन विन का एटीट्यूड रखकर जब आप बातचीत करोगे, बोलोगे और ध्यान से सुनोगे तो आप विन विन का रिलेशनशिप क्रिएट करोगे, और वो सफलता को आपकी को बढ़ाएगा। Therefore, if you really want to succeed with your vendor or your customer, have a perception कि दोनों पार्टीज की जीत हो सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि मैंने भाव बढ़ाया तो मेरी सक्सेस है, बाकी उसकी लॉस होगी, और उसका लॉस होता है तो मैं चिंता नहीं करता हूं। उस एटीट्यूड से लंबा नहीं चल पाओगे। जब तक कंपीटिंग फोर्सेस कम थी इंडिया में तब तक चल गया था। ध्यान रखिए, जब तक कंपीटिंग फोर्सेस कम थी इंडिया में तब तक चल गया था। आप सो रहे थे, कोई बात नहीं। वोडाफोन सो रहा था, आइडिया सो रहा था, एयरटेल सो रहा था, उनको नहीं दिख रहा था कि जियो क्या कर रहा है। पर हमको सोने की आदत है, हमको परसेप्शन ये है कि विन लूज में आज वही लोग ऐसी ऐसी स्कीमें निकाल रहे हैं जो उनको पहले निकालनी चाहिए थी, बिकॉज विन लूज का गेम खेल रहे थे। विन विन के गेम में आपको प्रोएक्टिवली आपके समय से आगे रहना होता है। If you want to succeed in business, imagine yourself into customer's shoes. Try to understand the problems and solve those problems in advance rather than when the person is sick. तो ये आपका परसेप्शन का बदलाव, कम्युनिकेशन आपका इंटरनल कम्युनिकेशन है।
वापस मैं इंटरनल कम्युनिकेशन पे आता हूं कि जब आप किसी कस्टमर से मिलने जाते हो तो आप क्या अंदर सोच रहे हो, वार्तालाप क्या है आपका। आपका वार्तालाप होना चाहिए कि मैं आज मिलने जा रहा हूं तो मैं ये देखूंगा कि उसका भला कैसे होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, मेरा प्रोडक्ट उसको कैसे मदद कर सकता है, उसके चैलेंजेस समझूंगा मैं, उसकी डिफिकल्टी समझूंगा और उसके सॉल्यूशन ढूंढूंगा। इस भावना से जाओगे तो बिजनेस 1 टाइम नहीं 10 टाइम्स ग्रो करेगा। पर वो परसेप्शन से हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग विन लूज, क्योंकि गेम्स जब बचपन से खेलते आए हैं तो यही सुनते आए हैं कि बैडमिंटन में एक जीतेगा और एक हारेगा। अगर एक मैं जीतूंगा नहीं तो हारूंगा, इसका मतलब कोई विकल्प नहीं है। लेकिन बिजनेस के गेम में, कम्युनिकेशन के गेम में दोनों पार्टीज जीत सकती हैं, लेकिन उस जीत सकती हैं कि विचारधारा के लिए आपको आपका परसेप्शन देखना पड़ेगा, आपका इंटरनल कम्युनिकेशन चेक करना पड़ेगा। अक्सर हम इंटरनल कम्युनिकेशन बगैर करके रखते हैं, इसलिए आपकी बॉडी भी बोलती है और आपका वर्ड्स भी बोलते हैं और आपके भाव भी बोलते हैं, और फिर बिजनेस ऊपर नीचे होता है। कस्टमर माल नहीं लेता है, मेल लेता है तो पैसे नहीं देता है, आप उसको दोष देते रहते हो, चलता रहता है। नहीं, ये गलत तरीके हैं। वी हैव टू लुक एट इट। दूसरी चीज ये है, थोड़ी सी सक्सेस आपकी स्पीकिंग के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है, थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमारी बोलने की स्पीड 150 वर्ड पर मिनट है, शब्द 150 एवरेज। कोई 100 में बोलता है, कोई 200 में बोलता है। और ब्रेन की प्रोसेसिंग की स्पीड, मैं अगर सुन रहा हूं तो, या आप सुन रहे हो तो 600 वर्ड्स की है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर आपने 600 वर्ड्स बोले तो आपने 4 मिनट लगाए, और मैंने जब उसको सुना तो मुझे कितना लगा? 1 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास आपके 600 वर्ड सुनते वक्त 3 मिनट फ्री थे, और वो फ्री टाइम मुझे यहां से कलकत्ता भी ले जा सकता है, न्यूयॉर्क भी ले जा सकता है, घर भी ले जा सकता है, कहीं और भी सोचने को मजबूर नहीं, अगर कंट्रोल नहीं है तो ले जाएगा। Therefore, when you are talking, स्पीकिंग की बात कर रहा हूं, जब आप बात कर रहे हो तो सामने वाले की आंखों पर नजर रखो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंखों पर नजर का मतलब यह है कि जब भी कोई इंसान सोचता है तब उसकी आंख की पुतली इन्फिनाइट पर फोकस करती है। जब मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन को देख रहा हूं तो मेरी आंख की पुतली सिकुड़ जाएगी, और मैं जब दूर कहीं सोच रहा हूं तो मेरी, अगर आप स्पीकिंग फॉर सक्सेस चाहते हो तो आंख में आंख डालकर देखते रहिए और देखिए कि क्या उसकी आंख की पुतली एक्सपैंड तो नहीं हो गई। अगर एक्सपैंड हो गई है तो वो अपने विचारों में खो चुका है, और अगर वो विचारों में खो चुका है तो वो सुनना उसका बंद हो गया है। आपने तो बोल दिया मंगलवार को मिलेंगे, लेकिन उसने सुना ही नहीं, वो तो बुधवार को आएगा। आपने तो बोला 5 रुपए का भाव है, उसने सुना ही नहीं, उसने बोला पहले डिस्कशन 10 का हुआ था। ये बहुत कॉमन एबिरेशंस हैं कम्युनिकेशन में। और सेल्स की भाषा में जब हम सेल्स के प्रोग्राम में बात करते हैं तो ये जरूर उनको कोचिंग किया जाता है कि सेल्स में आपकी सबसे बड़ी भूमिका है, जब आप प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हो तो आपको उसकी आंख की तरफ नजर रखनी है कि कहीं वो फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन मेंटली आउट तो नहीं है। और अगर आउट है तो आपका सारा कम्युनिकेशन बेकार जा रहा है, रुक जाइए। तो ये रेट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग का जो फर्क है, प्रोसेसिंग का जो फर्क है, वो उसको आपको स्पीकिंग के लिए ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मैं आपको ले चलता हूं स्पीकिंग के 3 तरीकों से। आप शब्दों से बोलते हो, टोन से भी बोलते हो, और शरीर से भी बोलते हो। अब आप बोलोगे शरीर से कैसे बोलते हैं? आपकी बॉडी बोलती है। आपकी बॉडी 60% बोलती है। 60% communication is not words, it is body. Your eyes, your hands, your facial gestures,
Everything speaks and everybody understands that. Don't try to say that I don't understand. Even छोटा बच्चा इसको समझता है, पापा जब घर में आए तो पहले उसका मूड देखता है, फिर डिमांड करता है चॉकलेट की। और अगर लगता है कि आज कहीं मार खा के आया है तो चुप हो जाता है। शरीर बोलता है और शरीर की भाषा हमको बाय एवोल्यूशन थोड़ी बहुत आती है, लेकिन इसको और थोड़ा सीखा जाए तो आप समझेंगे कि स्पीकिंग में 60% कम्युनिकेशन बॉडी से है, इसलिए बॉडी पर ध्यान देना पड़ेगा। 30% कम्युनिकेशन टोन से है, किस तरह से बात की गई है और किस भाव से की गई है। अगर भाव और किस तरह से की गई है अगर आपने नहीं पकड़ा तो आप गलत कंक्लूजन कर लेंगे। और बोलते वक्त आपको ध्यान रखना है कि क्या आपके शब्दों में, आपके टोन में और आपके शरीर में तालमेल है। अब ये सबसे बड़ी कठिन तपस्या मांगता है कि आर यू अवेयर। ईपैड प्रोग्राम में हर जगह पे मैं आपको बोलता हूं कि सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर आप कर पाओगे तो वो ये है कि क्या आपकी अवेयरनेस बढ़ा पाए आप, क्या आप जहां होते हो वहां होते हो। सो unless you are aware that you are aware, to reach you become unaware that you are aware. aware की स्थिति तक आने के लिए आपको बॉडी को देखना पड़ेगा, टोन को ध्यान से सुनना पड़ेगा और शब्दों का सिर्फ सिलसिला 10% का है, इसलिए बहुत ध्यान मत दो। हर इंसान शब्दों की माया नहीं जानता है, अंग्रेजी नहीं जानता है, अंग्रेजी हिंदी का नहीं जानता है, मिक्सचर होता है, कुछ भी बोलता है। शब्दों के मीनिंग, शब्दों से मत जाइए, शब्दों के टोन और बॉडी लैंग्वेज पर जाइए। 90% कम्युनिकेशन वहां छुपा हुआ है। देयरफॉर बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा समझना पड़ेगा। बॉडी लैंग्वेज जो है हमारी सीइंग से आती है। इसका मतलब ये हुआ, मैं अगर बोलूं, अगर मैं पिछली स्लाइड में ले जाऊं आपको, तो 10% शब्द हैं, 30% टोन है जो कान से सुना जाता है। शब्द भी कान से सुनते हैं, किस तरह से बोला गया है वो भी कान से सुनते हैं। बट बॉडी इज नॉट लिसन बाय ईयर्स, बॉडी इज लिसन बाय आईज। इसलिए कम्युनिकेशन में कान नहीं, आंख की महत्ता ज्यादा है, और जो आंख से सो रहे हैं उनका कम्युनिकेशन कमजोर होने वाला है। Therefore, you have to be very clear that body language is by seeing, and therefore, when you are in crucial discussions, please open your eyes, be aware if you want to succeed. आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर एक लॉन टेनिस का मैच चल रहा है, एंड्रे अगासी एंड बोरिस बेकर, हिज अपोनेंट। बोरिस बेकर की जब सर्विस आती है तो वो करीब करीब 200-250 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आती है, 50 मीटर्स 1 सेकेंड। एंड्रे अगासी उसको पकड़ नहीं पाता था और वो बॉल निकल जाती थी। बहुत परेशान हुआ वो। और ये बोरिस बेकर है और ये एंड्रे अगासी है। बहुत परेशान होता था, और जब परेशान होता था तो माथा पकड़ के बैठ जाता था कि क्या, कैसे मैं इसकी, अगर मैं इसकी सर्विस को पकड़ लूंगा तो मैं विंबलडन जीत सकता हूं। वो उसको पक्का था। क्या किया उसने, बड़ा इंटरेस्टिंग किया उसने बोरिस बेकर की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स को घंटों तक, दिनों तक देखा। घंटों तक, दिनों तक देखा। क्यों देखा? पागल हो गया वो, बिल्कुल पागल हो गया था, क्योंकि उसको कहीं उसमें सूत्र दिखना था कि मेरे को कहीं कुछ मिलेगा कि ये आदमी की सर्विस में कैसे क्या मैं इसकी बॉल रैकेट को जब टच करे उस वक्त जान सकता हूं कि सर्विस राइट जाएगी, लेफ्ट जाएगी या सीधी आएगी। क्योंकि अगर मैं कल्पना राइट की करता हूं और बॉल लेफ्ट को जाती है तो बहुत लेट हो चुका है। 1 सेकंड में 50 मीटर अगर जा रही है। बहुत मेहनत की उसने, और बहुत मेहनत करने के बाद उसने एक चीज पकड़ी। वो क्या थी? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। देखिए, बोरिस बेकर जब सर्विस करता है तो अनजाने में
अपनी जीभ को बाहर निकाल के दांतों में दबाता है, और उसने ये देखा कि जिस तरफ वो जीभ को दबाता है उसी तरफ उसकी सर्विस जाती है। जब उसका कंफर्मेशन हो गया कि ये उसकी आदत है और इस आदत का मुझे फायदा लेना है, कि मुझे मालूम पड़ जाएगा ये जैसे ही बॉल उठाता है जीभ तो दब जाती है उसकी, इसका मतलब बॉल को उछालने से पहले उसको मालूम होता है कि वो लेफ्ट में या राइट में कहां करने वाला है। अगर सेंटर में है तो सेंटर में दबती चीज। बस ये सूत्र से उसने बोरिस बेकर को विंबलडन में हराया, और ये सीक्रेट उसने 2-3 बार 4 बार हराने के बाद जब रिटायर हो गया तब बोरिस बेकर को शेयर किया कि मालूम है मैं तेरे से कैसे जीता। बोरिस बेकर को भी नहीं मालूम था कि देख, तूने कभी गौर नहीं किया है, लेकिन तेरी जीभ जिस तरफ तू सर्व करता है उस तरफ जाती है। That's a powerful process of watching body language. My God, what a critical examination this fellow has done. पर अगर आपको विंबलडन की ऊंचाइयां छूनी है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत बहुत जरूरी है। और एक एग्जांपल दिखाता हूं। डॉक्टर गौर सागर यूनिवर्सिटी के, हरि सिंह गौर जी सागर यूनिवर्सिटी के स्थापक हैं। 1949 में डेथ हो गई थी इनकी। बहुत बड़े लॉयर थे ये, और इन्होंने कोई केस नहीं हारा था। लेकिन इनका जो अपोनेंट वकील था वो इनको बहुत गौर से देखता रहता था, ऑब्जर्वेशन, और उसने पकड़ा कि जब भी गौर साहब दुविधा में होते हैं, कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट उनके सामने आ जाता है, जब जज के सामने वो बोलती बंद हो जाती है उनकी, तब वो अपने कोट के बटन को घुमाने लगते हैं और उनको कुछ सॉल्यूशन मिलता है। ये उन्होंने तालमेल कर लिया उसके साथ। एक केस में, बहुत इंपॉर्टेंट केस था, उसी वकील के सामने आए और उस वकील ने गौर साहब के ड्राइवर को ब्राइब करके, पैसा देके, और उसका बटन तोड़वा दिया कि तू इनके कोट के बटन को आज जब लाए तो तोड़ के लाना। उसने कर दिया ये, और कोर्ट में हाजिरी हो गई। लेकिन गौर साहब को मालूम नहीं पड़ा। मालूम तब पड़ा जब जिरह के टाइम में, बहस के टाइम में, एक बहुत कठिन सवाल वकील ने किया सामने वाले ने, जिसने बटन तोड़वाया था। तो उनका आदतन हाथ गया कोट के बटन पर, और बटन तो नहीं था। एंड दैट वाज द फर्स्ट केस डॉक्टर गौर लॉस्ट। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस की पावर को बढ़ाइए। और हम ई-पैड प्रोग्राम में बहुत ज्यादा एम्फेसाइज इस पर करते हैं कि जब तक आपकी अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, अपने बारे में ज्ञान, दुनिया का ज्ञान इकट्ठा करना बंद कर दो। आप अपने बारे में ज्ञान को पहले बढ़ाओ कि आप क्या हो, कैसे करते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, क्या रोकता होगा, अंदर ढूंढो। और जब आप वो ढूंढ पाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हरि सिंह गौर कैसे हारा। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी स्पिरिचुअल डायमेंशन में भी ले जाता हूं कि कम्युनिकेशन का एक स्टाइल इंट्यूशन भी है, किताबों में नहीं मिलेगा आपको। वो स्टोरी है कि नानक गांव में गए जिसमें कि मुसलमान रहते थे, हिंदू रहते थे, और मुसलमान के मौलवी ने बोला कि तुम अगर इतने बड़े धार्मिक नेता हो तो हमारी मस्जिद में आके दिखाओ, नमाज पढ़ के दिखाओ। बोला आऊंगा मैं, अगर तू भी नमाज पढ़ेगा। बोला मैं तो पढ़ने जाता ही हूँ शुक्रवार को, तुम आ जाओ। बोला आऊंगा। स्टोरी है, सुना कि मौलवी के साथ गए वो। हिंदू परिवार सारे थोड़े टेंशन में आ गए होंगे, कल्पना करता हूं। नानक गए और नानक पीछे खड़े हुए और बाकी सब लोग नमाज पढ़ने लगे। और नमाज पढ़ने लगे तो मौलवी साहब जब नमाज पढ़ रहे तो पीछे की तरफ बहुत देख रहे थे कि नानक कर रहा है कि नहीं। नानक ने तो कहीं नहीं झुका। तो जब नमाज खत्म हुई और बंद हुआ तो बहुत गुस्से में मौलवी ने बोला, तुम कैसे आदमी हो? तुम प्रॉमिस करके आए थे कि नमाज पढ़ोगे और पढ़ी नहीं। उसने बोला देखो, मैंने कंडीशन क्या रखी थी? मैंने कंडीशन रखी थी कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा। तुमने नमाज पढ़ी नहीं। बोलो क्या बोलते हो?
आप नहीं देख रहे मैं ऊपर नीचे हो रहा था? बोला नहीं, तुम्हारा शरीर ऊपर नीचे हो रहा था, तुम्हारा मन ईरान में घोड़े खरीद रहा था, क्योंकि तुम्हारा घोड़ा मर गया है थोड़े दिन पहले। सुना है कि मौलवी ने पैर पकड़ लिए कि तुमको कैसे मालूम पड़ा? इसको भी मैं कम्युनिकेशन बोलता हूं। इट इज कॉल्ड इंट्यूटिव सिक्स्थ सेंस। दिस विल ओनली कम बाय योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। देयरफॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को स्वर्ग नर्क से मत जोड़ो, आपकी परफॉर्मेंस से जोड़ो। आपकी परफॉर्मेंस जबरदस्त हो सकती है इफ योर सिक्स्थ सेंस understands lot of things, and all successful people have that sixth sense. Therefore all ये तभी होता है जब आप काम नहीं करते हो। मैं इसको फिर स्पिरिचुअलिटी से जब जोड़ता हूं, अवेयरनेस की एक्सपेंशन जब होती है तब आपकी कनेक्टेडनेस बढ़ जाती है, आप परमात्मा से अधिक क्लोजली जुड़ जाते हो, इंटरनेट का कनेक्शन पावरफुल हो जाता है, तब आपको दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, क्योंकि अब आपके साथ शक्तियों का दाता मंजूर है साथ में। सो कनेक्टेडनेस विद परमात्मा कहो, उसको फोटो पिक्चर भगवान मत बनाने की कोशिश करना, एनर्जी का सोर्स कहो, एक चारों तरफ व्याप्त एनर्जी कहो, जो भी कहना चाहो, वो आपके साथ जब जुड़ता है और आपका माइंड, आपका ब्रेन, आपकी स्पिरिट जब जुड़ जाती है तो आपके बहुत सारे निर्णय सटीक होते हैं, सही होते हैं। आपको भी मालूम नहीं होता है कि आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया था। इसलिए अगर आपने कोई पिछली मेरी वर्कशॉप अटेंड की हो तो वी हेल्प पीपल इन ईपैड टू रीच फ्रॉम आई एम नॉट अवेयर दैट आई एम नॉट अवेयर टू आई एम नॉट अवेयर दैट आई एम अवेयर। मुझे नहीं मालूम कि मुझे आता है। और जब ये स्थिति में आते हो तो आपकी अवेयरनेस एक्सपेंडेड होती है, इंट्यूटिव फोर्स बहुत जबरदस्त काम करता है और बहुत ऊंची ऊंचाइयां छूनी है। तो ये इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई रास्ता नहीं है। हाँ, आप शायद स्पिरिचुअलिटी को मंदिर टीके और घंटियों से देखते हो, मैं नहीं देखता हूँ। ये आपकी अवेयरनेस का सब्जेक्ट है। सो माय टाइम एंड्स। Thank you very much for listening to me, and if there are questions, quick questions, I can take them. Yeah, anybody would like to ask a question? Quick question, anybody? But वैसे तो बहुत सरल सब्जेक्ट है, इसलिए सबको आता ही होगा। ये रिवीजन ही हुआ होगा इनके लिए। I think there are no questions. So, ma'am, can we go to the आज का चलें? Neeru, are you there? I think Varsha ji has won by the time. Varsha ji, Varsha Kulkarni. Hello, I can I will. I will. Make it quick, ma'am. Yeah, so this change of self-thought is very challenging because what you said exactly, हम अब से जो बात करते हैं वो इतना सिंक इन हो गया रहता है. Right, So absolutely. it is really very, very challenging. So any tip to, I know it is not simple, but any tip to make it more practically practicing? You have to practice. मैंने आपको आज लिखवाया why can't I को काट दो, इसको अपने सामने पोस्टर पे लगा दो। जब भी why can't I बोलते हो, मैं नहीं कर सकती क्योंकि उस वक्त इसको काट दो और एक सामने पोस्टर लगा दो कि मेरे को ये काम करना है, ये रुकावट आ रही है, कैसे दूर करूंगी मैं इसको, कैसे। बहुत सरल है लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे समय का इस तरह का हमारा फॉर्मेशन हो चुका है, लोड है हमारे पास। It's the lot of fear factors that come in, lot of fear factors. नहीं, इसमें फियर नहीं आएगा क्योंकि आप रास्ते ढूंढ रहे हो। रास्ते ढूंढने में फियर नहीं है, रास्ते चलने में फियर हो सकता है। आप खड़े रहने को फियरलेस बोल रहे हो, मैं बोलता हूँ खड़े रहना ज्यादा फियरफुल है। आपने आपके सामने चैलेंज आया, आप एक अंधेरे कमरे में जा रहे हो और आपको डर लगा कि यार काला सांप नहीं हो अंदर, तो खड़े रह जाओगे बाहर। खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। What can I do? How can I do? जब how can I go and enter this room, जब आप सवाल उठाओगे तो आपके सामने जवाब आएगा कि मैं कुछ लाइट टॉर्च का अरेंजमेंट करूं, तो आपको लगेगा कि this is possible, that we can create solutions. Thank you, sir.
Thank you. Bhagwat ji has a question. Bhagwat Patel. I will, sir. I will. मुझे क्वेश्चन नहीं है, बट आपने जो आई कांट बोला है उसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. बिकॉज आई ज्वाइन विथ यू इन 2006 एंड देन हमारी फैक्ट्री में हमने एक कॉर्नर बनाया है जहाँ पर हमने एक छोटा सा पत्थर के ऊपर लिखा है आई कांट बरीड ओवर हियर. मतलब जो भी हम नहीं करना चाहते या जो हम नहीं कर सकते हैं उसको हमने यहाँ दफन किया हुआ है. शमशान घाटी खोल दिया उधर. यस, वहाँ पर हमने एक छोटा सा कब्र बनाया है और एक डब्बा रखा है और उसमें जो भी लोग बोलते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो उनको हम बोलते हैं कि चलो एक चिट्ठी लो, कागज में लिखो कि मैं ये नहीं कर पाता हूँ और उसको वहाँ जाके वो डब्बे में डाल दो. तो सर मैं शेयर करना चाहूँगा कि फॉर्चुनेटली आज तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीज़ हमने ऐसी की है कि जो हम नहीं कर सकते थे. वेरी गुड, एक्सीलेंट. तो ये आई कांट का पावर, पर उसमें आपने एक चीज़ और ऐड की है वो मुझे ज़्यादा लगा है. हाउ कैन आई, वो हमने ऐड नहीं किया है, वो अभी ऐड कर देंगे. आज से आपने बताया. एक चीज ध्यान रखो, भगवत गुरु सारे दाव नहीं बताता है. नहीं, पर वो थैंक यू, वेरी गुड. आई थिंक आपने थैंक यू वेरी मच भगवत. वर्षा को बहुत कुछ मिला होगा इसमें से. इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल. तो शैलेंद्र बोल रहे हैं कि यस, भगवत पटेल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैंने देखा है, विटनेस किया है ये चीज. बहुत बढ़िया. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड वी मीट ऑन द नेक्स्ट संडे. व्हाट इज द प्रोग्राम नेक्स्ट संडे? नीरू मैम, Manish, you have an idea? I think इसका कुछ चैलेंज है, so we will let you know. Okay. Let me know. I will. So we'll meet next Sunday. I will.